Auzubillahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Our second last topic, sampling, is what we would be discussing today. We have one more session after this, which is, it's kind of a elaborate session regarding the contents of a typical MS thesis or a PhD thesis. Before that, this is our last topic, which is sampling. For this topic, you'll have to uh, go through this presentation, the sampling notes on our Yahoo group, and as you'll see soon, in some cases you'll have to refer back to some relevant discussion that we had in the DOE module regarding type 1 and type 2 errors and PAR. So let's get on with the job. And what we'll be discussing today is firstly why we need to do sampling, then what are different methods which can be used for sampling, then what is the difference between probability and non-probability sampling, and strengths and weaknesses of some methods. Most of this content, as I said, you'll find in this presentation, the notes, and DOE. Alright, so before we move on to reasons for sampling, there's a really fundamental concept that you should understand, and this is the concept that actually lies at the heart of this entire business that we call sampling, and that concept is called central limit theorem, or the CLT. What is the central limit theorem? It says that if you collect enough data, then the mean of all samples that you have collected in the data will be approximately equal to the mean of the population. So what it is essentially saying is that there is perhaps a critical number that you can sample out of a population which to a fair degree represents the population. So say the population is a million. So if you reach that number of samples, say 3,000 or 4,000 or whatever it comes out to be, it would pretty fairly reflect the characteristics of the entire population of 1 million. So that is really the basis of of the entire research part that we call sampling. Now, this theorem, we refer to this theorem by many names: central limit theorem, central tendency. Not exactly, but pretty close is the law of large numbers. So, having many names, but really important concept in research, which forms the basis of sampling. Now, variance of the samples, it also corresponds approximately and proportionally to the variance of the population. And finally, as I said, this theorem, this concept, is actually forms the foundation of a large number of statistical tests. Why? Because a large number of statistical tests are based on the normal curve, on the assumption that the data we are collecting falls into a pattern that we call uh, normal curve, or the natural distribution, or the normal distribution. We discussed this earlier in one of our modules, so we won't spend lot of time on this here. But basically, you sample because the central limit theorem kind of assures us that having enough number enough in our sample would pretty much make us confident that we are actually learning enough about the population. Okay, so this is a slide that I just want to have a look, because this will form the core of our next module, and it also kind of puts into perspective what sampling is. There are different steps that you go through when you do a research, and first, obviously, you find
understand and define the issue or the topic that you want to research, then you kind of convert it into a specific topic. Then you have to prove that it's a good topic. Then you have to refine it to, from a research perspective to a level that it actually then later translates into research questions. Once you have your research questions, you do the hypothesis business. You define the terms operationally so that everybody understands the same thing from the same term, and so that you can agree on what measures a particular variable, and then you make a plan for sampling and data collection. So this is where sampling is in perspective from a research point of view. Now let's move on and see what sampling is. Before looking at the definitions, why we do sampling? Well, basically, you want to balance your need for statistical power with the expense of gathering data. So, I want to be pretty confident that my sample represents the population, but at the same time, I don't want to spend a lot of resources on money on that. So, it's kind of a balance that you try to find, the balance between statistical power and expenses. And you do that by answering this question. The question is, how much data do you need? Now, well, a pretty simple question, how much data do you need? But it's kind of deceptive and it can take many forms. For example, how many samples do you need to determine if the average thickness of paper from one supplier is the same as another supplier? Now, that simple question has become pretty complex here. Another question could be, how many people should you sample to be 95% sure or confident that the proportion of people supporting a candidate is within 3% of its true value in elections? Well, yet another rather complex question could be, can you trust the t test conclusion that indicates the average test scores of two school districts are not different? Yet another one, how many replicates does your experiment need if you want to have at least 85% chance of detecting the factors that significantly affect your manufacturing process? So now this one from the DOE that you learned last time. So this rather simple question of how much data you need can actually become very complex in your research, but that is the fundamental question. How much data do we need? And ideally, you want to collect enough data to be sure that you have sufficient power to draw sound conclusions, because remember, at the end of the day, yeah, the basic question about your research, whether it is reliable or not, whether it is valid or not, would decide whether your research would be accepted and will have any seminal value. So, being statistically confident would actually make sure that your professors, your committee, they accept your research. Now, going to the definition that you have on your slides, a sample is a smaller but hopefully representative collection of units from a population used to determine truths about that population. So, you want to know whether the people of Islamabad, again, our old example, follow traffic rules or not. Islamabad has, let's say, a population of 4 million. So, how many samples should we take? Should we assess each and every person in Islamabad, or should it be 100 people? And where they should be? Should they be from a particular sector? Or should we be standing at the entries and exit of Islamabad to see if they follow the rules? So this is the kind of questions that are addressed when you formally decide what sample you will have. So as we said earlier, why sample? You
you don't want to spend endless time, money, and resources on sampling and doing the research and uh, give results with known accuracy that can be projected on the population. And as we saw a bit earlier, and the law of large numbers, or the central limit theorem plays a fundamentally important role in the whole concept. So before we move on, there are a few terms that we must understand uh, regarding sampling. So the first one that you see on your slide is target population. The population to be studied, to which the investigators want to generalize his results. तो एक पूरी पॉपुलेशन है इस्लामाबाद के सारे लोग, और आप एक सैंपल लेंगे 100 200 400 600 लोगों का, और फिर इस पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देंगे अपने रिजल्ट्स को। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉपुलेशन, वो बड़ी ग्रुप जिसमें से हम छोटा सा सैंपल उठा के तो जनरलाइज कर देंगे अपनी फाइंडिंग्स को। अगला टर्म है सैम्पलिंग यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच सैम्पल कैन बी सिलेक्टेड। अब आप फैसला करें कि आप इस्लामाबाद के इंडिविजुअल्स को देखना चाहते हैं या इस्लामाबाद की पर्टिकुलर टाइप ऑफ गाड़ियों को देखना चाहते हैं या इस्लामाबाद के पर्टिकुलर इशारों को देखना चाहते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को देखना चाहते हैं या पर्टिकुलर सेक्टर्स को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद के लोग, तो द यूनिट बिकम्स एन इंडिविजुअल इन इस्लामाबाद। फिर सैम्पलिंग फ्रेम, लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम विच सैम्पल इज़ ड्रॉन। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे केस में तो सिंपल है कि इस्लामाबाद के लोग हमारा यूनिट हैं, तो पॉसिबली हम सारे के सारे लोगों को मेजर कर सकते हैं, पॉसिबली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पॉपुलेशन का या एक बहुत बड़ा हिस्सा मेजरेबल नहीं होता, या कभी ऐसा होता है कि आप पॉपुलेशन को किसी और तरीके से मेजर कर रहे होते हैं। जैसे आप इंसानों में बीमारियों को आप ये देखना चाहते हैं कि इंसान को जब ये पर्टिकुलर चीज़ खिलाई जाए तो इसको बीमारी होती है कि नहीं, तो वो आप इंसान को खिला के तो नहीं देख सकते। आप वो किसी रैट को या किसी और गिनी पिग को, किसी और जानवर को खिला के देखते हैं और फिर उसकी बेसिस पे दवाइयाँ बनाते हैं। तो पॉपुलेशन हो सकता है कि आपकी मेजरेबल ना हो, आप किसी और चीज़ को मेजर कर रहे हो, या आप देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा अभी 5वीं क्लास में है, उसके 7वीं क्लास में क्या रिज़ल्ट आएंगे। तो मुमकिन नहीं है कि आप 7वीं क्लास के उसके रिज़ल्ट देखें, तो आपको कोई और चीज़ देखनी पड़ती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको सैम्पलिंग फ्रेम का फैसला करना पड़ता है कि पॉपुलेशन के अंदर या पॉपुलेशन से आउटसाइड कितने यूनिट हैं जिनको मैं एक्चुअली पॉसिबली सैम्पल कर सकता हूँ। और आखिर में सैम्पलिंग स्कीम, मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम। अब पता चल गया कि इस्लामाबाद के फ़र्ज़ करें 40 लाख लोगों में से मेरे फ्रेम में खाली 15 लाख लोग आ रहे हैं, बाकी 35 नहीं आ रहे फॉर वट एवर रीज़न। तो अब इन 15 लाख में से मैं कितने लोग सेलेक्ट करूँगा, मेरी स्कीम क्या होगी। तो ये टर्म्स आपको यू मस्ट हैव इन योर माइंड शुरू करते ही जब आप अपनी रिसर्च में सैम्पलिंग देख रहे हैं। Now there are some factors that influence how well your sample is representative of the population, and obviously the biggest factor is sample size. If you keep increasing the size of your sample, obviously you'll become more and more representative of the population. 100 लोग हैं, एक रिसर्चर ने उसमें से 10 को सैम्पल किया, एक ने 20 को सैम्पल किया, तो ऑब्वियसली 20 वाला ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। जिसने 40 कर लिए 100 में से वो और ज़्यादा होगा, जिसने 60 कर लिए वो और ज़्यादा होगा। तो बड़ा बड़ा फैक्टर सैम्पल साइज़ होता है। फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हो सकता है कोई बंदा डायरेक्टली मेजर कर रहा हो, कोई बंदा किसी प्रॉक्सी के थ्रू मेजर कर रहा हो, कोई क्वेश्चनेयर लेके उनके पास चला जाए, कोई उनका इंटरव्यू कर ले। तो प्रोसीजर आप क्या फॉलो करेंगे सैम्पल, एक तो सैम्पल तक पहुंचने का और फिर सैम्पल से डेटा ड्रॉ करने का, वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका सैम्पल एक्चुअली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। और फाइनली पार्टिसिपेशन, आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो किस हद तक आपके
कि डेटा कलेक्शन एफर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। कि उनके पास टाइम बहुत कम है और आपने ईमेल पे क्वेश्चनर भेजा है तो वो अकड़ बकड़ करके ABC करके भर देंगे, तो ऑब्वियसली आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगी अपने सवाल के बारे में, कंफ्यूजिंग डेटा मिलेगा। अपोजिट साइड पे अगर आप एक बंदे को सामने बिठा के इन डेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली एक बेहतर उस बंदे का पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपने सैम्पलिंग में जहन में रखना होता है। अब जो हमने पीछे बात की पॉपुलेशन की, सैंपल की, ये उसी की एक डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने सैंपल ड्रॉ किया टारगेट पॉपुलेशन के अंदर से, और कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट पॉपुलेशन और थियोरेटिकल पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे इंसानों में बीमारियां देखनी है तो रैट्स को देख रहे हैं, जैसे बच्चों के फ्यूचर स्कोर्स देखने हैं। इस तरह और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन और थियोरेटिकल पॉपुलेशन फ़र्क हों, या ऐसे भी हो सकता है कि टारगेट पॉपुलेशन और थियोरेटिकल पॉपुलेशन एक दूसरे से ये रिलेशनशिप हो कि थियोरेटिकल बहुत बड़ी और टारगेट उससे भी छोटी। यानी आप पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहते हैं कि वो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं, और उसके अंदर आपने टारगेट किया पाकिस्तान के 100 में से 20 शहरों को, तो थियोरेटिकल पॉपुलेशन बड़ी हुई, टारगेट उससे छोटा हुआ, और फिर उस टारगेट के अंदर से आपने सैंपल ड्रॉ करना है। अब नाउ there's another concept, another statistical value that you would need for your research, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग वैल्यू। प्लानिंग ये स्लाइड पे देखने से पहले मैं आपको प्लेन ज़ुबान में बता दूं कि प्लानिंग वैल्यू क्या होती है कि कभी भी रिसर्च शुरू करने से पहले आपको जो आपकी पॉपुलेशन है उसके बारे में एक ए प्रायोरी नॉलेज चाहिए होती है। यानी पहले से किसी ना किसी हद तक आपको कोई ना कोई बात पता होती है, तभी तो आप रिसर्च की तरफ जाते हैं ना। शायद दुनिया में पहली बार जिन लोगों ने इन टॉपिक्स पे की हो उनको ना हो, लेकिन अभी रिसर्च किए बगैर आपको मोर और लेस और एक रफ नंबर्स में पता है कि लाहौर के लोग कितना फॉलो करते हैं ट्रैफिक को, कराची के लोग कितना करते हैं, पेशावर के लोग कितना करते हैं, इस्लामाबाद के लोग कितना करते हैं। आपको नहीं भी पता तो किसी पब्लिश्ड जगह पे शायद लिखा हो, नहीं भी पता शायद गवर्नमेंट के पास कोई फिगर हो। तो एक प्लानिंग वैल्यू आपको स्पेशली सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हुए चाहिए होती है, जिस पे आप बिल्ड करके फिर कंपैरिजंस करते हैं। अब ये स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू एस्टिमेट सैम्पल साइज और मार्जिन्स ऑफ एरर you need information about the data you expect to collect. Information about the data you expect to collect, and it is a priori knowledge about the issue, यानी ये पहले से मौजूद नॉलेज होती है जो आपको ऑब्वियसली उस डिटेल में कंप्लीट नहीं होती, तभी तो आप रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी हद तक मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी एक पूरी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन। यू कैन ऑब्टेन प्लानिंग वैल्यूज़ फ्रॉम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात कर रहे हैं, फ्रॉम एक्सपर्ट ओपिनियन, एक बंदा है जो IG रहा हुआ है, IG ट्रैफिक रहा हुआ है पेशावर का 8 साल, तो उसको वो आपको बहुत अच्छी तरह एक वैल्यू दे देगा कि कितने लोग फॉलो करते हैं पेशावर में ट्रैफिक सिग्नल्स को। प्रायर स्टडीज़ और स्मॉल पायलट स्टडीज़, जैसा मैंने आपको कहा, हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई स्टडी की हो सकता है किसी और पब्लिश्ड जगह पे कोई स्टडी लिखी हो। द प्लानिंग वैल्यू यू नीड डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर यू वांट टू एस्टिमेट। अब प्लानिंग वैल्यू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, प्रोपोर्शन है, कोई रेट है, कोई मीन है, क्या चीज़ है प्लानिंग वैल्यू, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च क्या है। जैसे आप अगर ये स्लाइड पे देखें तो अगर आप टी टेस्ट कर रहे हैं 1 सैम्पल तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लानिंग वैल्यू होती है। अगर आप 1 सैम्पल पॉइसन रेट देख रहे हैं तो वहाँ पे रेट होगा, या मीन भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप वेरिएंस देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकती है और वेरिएंस भी हो सकती है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन विच टेस्ट यू आर कंडक्टिंग
to compare your population with your sample. और ऑब्वियसली वो ये पता कैसे चलता है, वो ये उसी वक्त पता चलता है जब आप उस टेस्ट से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या इनपुट्स चाहिए आउटपुट देने के लिए। यानी मिनिट ऐप पे या SPSS पे जब आप वन सैम्पल टी टेस्ट का मॉड्यूल खोलेंगे तो वो आपसे कोई प्लानिंग वैल्यू पूछ लेगा। वो अब वो प्लानिंग वैल्यू मुख्तलिफ़ टेस्ट्स के लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस स्टैंडर्ड डेविएशन प्लानिंग वैल्यू के तौर पे यूज़ होती है। एक और कॉन्सेप्ट अगेन आगे जाने से पहले, वो है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर क्या चीज़ है जो आप रोज़ टीवी पे देखते हैं कि हमारे ख़्याल में 2018 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। जैसे दुनिया न्यूज़ ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था और साथ ही कहा था कि उनको तकरीबन 47% वोट मिलेंगे ±3%, यानी 50 भी मिल सकते हैं, 44 भी मिल सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ देख के मोर और लेस वही हुआ कि जो उनका सर्वे था उसी के दरमियान एक्चुअल वोट्स फॉल किए। ये प्रॉब्ली पाकिस्तान में पहली बार हुआ है, लेकिन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में ये दहाइयों से होता आ रहा है कि सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस वो इलेक्शन से पहले बताती हैं कि ये पार्टी जीत जाएगी, इसके इतने वोट होंगे और ±5% ±3%। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। स्लाइड पे लिखा है मार्जिन ऑफ एरर एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ अ पैरामीटर सच एज मीन और प्रोपोर्शन। यानी आप कहते हैं कि मैंने डेटा निकाला वो तो मैं आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता रहा हूँ, लेकिन मेरी जो सैम्पलिंग थी उसमें 3% ऊपर एरर हो सकता है, 3% नीचे हो सकता है। ठीक है जी। The margin of error is often reported in survey result. For example, a political poll might report that a candidate's approval rating is 55%, the margin of error of 5%, यानी 50 और 60 के दरमियान है इस कैंडिडेट की अप्रूवल रेटिंग। अब हम उसको अप्रूव करते हैं 50 और 60 के दरमियान। सो बेसिकली आप क्या कह रहे होते हैं कि मेरे डेटा से तो 55 निकला है, लेकिन मैंने जो सैम्पलिंग की थी उसमें हो सकता है 5% ऊपर का एरर हो गया और 5% नीचे का एरर हो जाए पॉपुलेशन से जब आप कंपेयर करेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। और ये बेसिकली आपकी जो पॉपुलेशन में से जो आप सैम्पल कर रहे होते हैं उस सैम्पलिंग प्रोसेस में जो रैंडम एरर मुमकिन होता है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी सैम्पलिंग में रैंडम एरर का 5% ऊपर और 5% नीचे चांस है। अगला सैम्पलिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप DOE में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ पार, कि आपके टेस्ट में कितनी पार है कि वो पॉपुलेशन और सैम्पल के डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको हमने DOE में काफ़ी पढ़ा था, लेकिन जस्ट इससे गुजर जाते हैं कि to make sound decisions based on statistical analysis, obviously you need to be sure that you can trust your results. यही चीज़ होती है आपकी रिसर्च की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। यू नीड टू बी श्योर कि रिजल्ट आएंगे तो एवरीबडी कैन ट्रस्ट देम। वी कैन मेजर दिस ट्रस्ट यूजिंग स्टेटिस्टिकल पावर। एक हमारे पास एक स्टेटिस्टिकल फिगर है जिसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल पावर। वो क्या है? इट इज़ द लाइकलीहुड दैट योर टेस्ट विल आइडेंटिफाई अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और अफेक्ट व्हेन वन ट्रूली एग्जिस्ट्स। यानी मेरे टेस्ट में या मेरी रिसर्च में ये पावर है कि अगर सैंपल और पॉपुलेशन में कोई फ़र्क हुआ या दो सैंपल्स में कोई फ़र्क हुआ तो मेरा टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा। इट्स अ पावरफुल टेस्ट। The statistical power that you need, it basically varies based on your goals and your resources. अब आप हर बंदे को सैंपल कर लें तो ऑब्वियसली पावर बढ़ जाएगी। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आपके पास, सारी की सारी पॉपुलेशन से पूछ लें, पावर बढ़ जाएगी। नाउ जैसे कि आपके गोल्स को इस एंगल से देख लें कि जैसे जहाज़ एक उड़ने वाला है और यू वांट टू बी श्योर कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, एक हवाई जहाज़, तो ऑब्वियसली यूल नीड टू बी वेरी श्योर। आपको वहाँ पे हाई पावर टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते कि जहाज़ गिर जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप एक मेज़ बना रहे हैं और आपने मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, तो वहाँ पे पावर आपको शायद परफेक्ट नहीं चाहिए,
थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो गई तो कोई मसला नहीं, कि अगर बैलेंस ना हुई तो बाद में एडजस्ट कर लूँगा। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर गोल्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो आपकी स्लाइड ये कहती है कि द लाइकलीहुड दैट यू विल फाइंड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट और डिफरेंस व्हेन वन ट्रूली एग्जिस्ट्स। जब दो सैम्पल्स में फ़र्क है और आप उसको ढूंढ लेंगे, इस चीज़ को हम पावर कहते हैं। अब ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सैम्पल साइज़ पे बहुत डिपेंड करती है। जो सारे सैम्पल ले लेगा ज़ाहिर है उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर जो हमने डीओई में पढ़ा था टाइप 1 एरर, तो जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेगी तो आपकी पावर बढ़ जाएगी। इसी तरह वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन कितनी है पॉपुलेशन के अंदर, अगर पहले से वेरिएशन कम है, एस कम है, तो इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट अ डिफरेंस। तो यानी कि एक पॉपुलेशन है जो कि जिसके सारे के सारे लोगों का वज़न 55 और 75 के दरमियान है, तो फिर ज़ाहिर है कोई एक 85 वाला आएगा तो फ़ौरन आप उसको ढूंढ लेंगे, आपको पता चल जाएगा अगर एक पर्टिकुलर गांव में से हैवी लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे 0 से लेके तो 200 तक वज़न है, कभी किसी का 0 निकल आता है, कभी 60 निकल आता है, कभी 150 निकल आता है, फिर ऑब्वियसली उसमें फिर एक पर्टिकुलर रेंज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट, द मोर सिमिलर पॉपुलेशंस आर द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डिटेक्ट अ डिफरेंस। जब आप डिफरेंस डिटेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं तो दो पॉपुलेशंस अगर बिल्कुल एक जैसी हों, एक गांव है उसके अंदर 55 से लेके 75 तक है वज़न लोगों का, और उसके साथ वाले गांव में 56 से लेके 66 तक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर सैम्पलिंग करनी टफ होगी और आपको हाई पावर टेस्ट चाहिए होंगे। अब अगेन ये चीज़ हमने डीओई में देखी थी, वही रिपीट हो रही है कि पावर इक्वल्स 1 माइनस बेटा, और बेटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर। तो और हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर एक दूसरे की कॉस्ट पे होते हैं। जब अल्फ़ा बढ़ता है बेटा डिक्रीज़ होता है, तो जो जो अल्फ़ा बढ़ेगा पावर बढ़ेगी। पीछे स्लाइड पे हमने देखा था, कीप इन माइंड दैट इंक्रीजिंग अल्फ़ा ऑल्सो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। यानी आप अल्फ़ा को बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ पे टाइप 1 एरर के चांस बढ़ जाते हैं। टाइप 1 एरर क्या होता है कि रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, यानी एक चीज़ थी जिसके बारे में आपने शुरू में हाइपोथेसाइज किया कि ये आपका ख्याल था कि ये ऐसा ही है, आपने नल हाइपोथेसिस बनाई कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको डिटेक्ट ना कर सके हालांकि वैसा ही था, तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। तो सैम्पलिंग का पावर के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है, और आपने इंश्योर करना होता है कि आप अल्फ़ा और बेटा की वैल्यू में या टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स में बैलेंस लेके आएँ। अब सैम्पल कितना होना चाहिए, हमने इसके बारे में काफ़ी नाउ वी फ्रेटेड अ लॉट अबाउट इट, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर में इसके लिए एक टूल मौजूद है। मिनी टैब में इस टूल को हम कहते हैं पावर एंड सैम्पल साइज़ टूल। अब ये तमाम अच्छे सॉफ्टवेयर में ये या इस तरह का टूल मौजूद होता है। आप इस स्लाइड में लेफ़्ट साइड वाली विंडो को देखें अगर, तो जब आप ये एक 2 सैम्पल टी टेस्ट के लिए ये विंडो खोली हमने, ये आप कैसे जाते हैं कि आप स्टैट्स में जाके टेस्ट्स के अंदर जाके तो पावर एंड सैम्पल साइज़ टूल को क्लिक करते हैं। यानी पहले आप फैसला करते हैं कौन सा टेस्ट कर रहे हैं आप, और फिर उसके अंदर पावर एंड सैम्पल साइज़ के टूल को क्लिक करते हैं। अब ये 2 सैम्पल टी टेस्ट है, और ये आपको कह रहा है कि स्पेसिफाई वैल्यूज़ फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, सैम्पल साइज़, डिफरेंसेस, पावर वैल्यूज़। इन तीनों में से कोई दो बता दें, तीसरी मैं बता दूंगा आपको। तो हो सकता है कि आपको अपने टेस्ट की पावर पता हो और सैम्पल साइज़ भी आपको पता हो। बल्कि पहले मैं आपको बता देता हूँ अगेन, इन तीनों को डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये है क्या। सैम्पल साइज़ ऑब्वियसली द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच सैम्पल, यानी आप एक सैम्पल के अंदर कितने लोग होंगे जिनको आप सैम्पल कर रहे हैं। डिफरेंस वो चीज़ है जिसको हम पीछे अफेक्ट्स कह रहे थे, या डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हुए हमने इसको अफेक्ट्स कहा था। यानी द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द मीन फॉर वन पॉपुलेशन एंड द मीन फॉर द अदर दैट यू कैन डिटेक्ट। यानी आप इस टेस्ट को बताते हैं, एग्ज़ाम वो जो मैं अगर 2 गाँव के लोगों के वज़न की बात कर रहा था, तो आप इस टेस्ट को बताएंगे कि इन दोनों गाँव के लोगों के वज़न में अगर 2 किलो से ज़्यादा का फ़र्क हो तो मुझे पता चल जाना चाहिए। यानी आप उसको कह रहे हैं
कि अगर फ़र्क 1.5 किलो का हो तो बेशक मुझे नाप भी पता चले तो ठीक है। यानी आप अपनी एक लिमिट डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप उसको कहें कि नहीं 1 ग्राम का भी फ़र्क हो तो मुझे बताना, तो फिर ऑब्वियसली वो आपको कहेगा कि बहुत बड़ा सैंपल इकट्ठा करो फिर। लेकिन अगर आप उसको कहें कि इनमें 2-3 किलो का फ़र्क हो, 2-3 किलो से जो ही बढ़े तो मुझे समझ आ जानी चाहिए, तो फिर वो आपको फिर अकॉर्डिंगली बताएगा कि इतना सैंपल साइज़ रखो। तो डिफरेंसेस क्या है? द डिफरेंसेस दैट यू वांट टू डिटेक्ट। और उसके बाद है पावर वैल्यूज़। पावर वैल्यूज़ क्या होती हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस व्हेन वन ट्रूली एग्जिस्ट्स। अब इन ये तीनों चीज़ें, इनको अगर आप मज़ीद डिटेल में समझना चाहते हैं कि कितना लिखना है, किस यूनिट्स में लिखना है, तो ये जो आपको अपने स्लाइड पे लेफ़्ट साइड पे विंडो नज़र आ रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें एक हेल्प का बटन आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल नीचे। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की डिटेल बता देगा। अ, फिर इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं एक जगह पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ दिस इज़ द प्लानिंग वैल्यू दैट वी टॉक्ड अबाउट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी प्लानिंग वैल्यू, वो मैं इसकी बात कर रहा था। स्टैंडर्ड, ये इस टेस्ट के केस में द प्लानिंग वैल्यू इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये आपको, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की, कोई एक्सपर्ट बता सकता है, कोई प्रीवियस स्टडी बता सकती है, वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। तो आप मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ डाल के जब इसको ओके करेंगे तो ये राइट साइड पे जो आपको विंडो नज़र आ रही है ये आपको नज़र आएगी। और ये आपको वो तीसरी वैल्यू दे देगी जो आपने नहीं डाली होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में ये आपको कह रहा है कि आप 33 का सैम्पल साइज़ होना चाहिए आपका, अगर आप चाहते हैं कि आप 2.5 किलोज़ का डिफरेंस डिटेक्ट कर लें इन आर केस, और आपकी पावर 85% हो। नॉर्मली लोग जो पावर रखते हैं वो कोशिश करते हैं कि 85 से ऊपर हो। कुछ लोग 90 को प्रेफर करते हैं, यानी 0.9 लिखते हैं पावर वैल्यू में। एज अ जनरल रूल आप उसको मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि 0.9 को टारगेट करता हूँ। थोड़ा सा आपको सैंपल ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन यू आर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि आपके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। So basically you can use Minitab's this parallel sample size tool to make sure you collect enough data to conduct a reliable analysis while avoiding wasting resources by collecting more data than you need. You can also assess the power of tests that have already been run and estimate the sample size you need to obtain a specific margin of error. यानी आपके सामने कोई बंदा टेस्ट करके लाया, तो आप उसकी डेटाबेस में डाल के देख सकते हैं कि उसका टेस्ट पावरफुल था कि नहीं, और अकॉर्डिंगली फिर आप उसको बता सकते हैं कि इसको मज़ीद पावरफुल करो या ठीक है। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट स्लाइड, सैम्पलिंग मेथड्स। ये जो जितने भी मेथड्स हैं ये बहुत डिटेल में आपके, जो आपको मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं उनके अंदर लिखे हुए हैं। बेसिकली दो ग्रुप्स हैं सैम्पलिंग मेथड के। पहला ग्रुप है प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स। फ़र्क क्या है? जब आपकी पॉपुलेशन में हर मेंबर का नॉन ज़ीरो चांस हो कि उसको आप मेजर कर सकते हैं, तो उसको आप प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स कहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि जो मेरी पॉपुलेशन है इनमें से हर बंदे का चांस है कि वो मेरे सैंपल में आ जाए, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल। अब चांस इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, यानी क्या मैं जब डिटेक्ट करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद की पॉपुलेशन सिग्नल्स फॉलो करती है कि नहीं, तो शायद कोई इस्लामाबाद के सबअर्ब्स में जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनमें से किसी गांव में बंदे का चांस ना हो कि मेरे सैंपल में आए, लेकिन नॉन ज़ीरो चांस ज़रूर है कि शायद वो किसी ना किसी शहर से गुजर रहा हो आज। तो इस तरह के सैंपल्स को प्रोबेबिलिटी सैंपल्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनमें किसी बंदे का कोई चांस नहीं होता कि वो आपके सैंपल में आए। जैसे आप आप चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद के ऐसे लोगों को सैंपल करूं जो मुझे पाकिस्तान के मईशत के 5 साल के बाद की पिक्चर के बारे में कुछ बता सकें। तो उसमें इस्लामाबाद की बहुत बड़ी आबादी है जो कि आपके सैंपल में आने का उसका कोई चांस नहीं है। ऑब्वियसली आप जाके इट विल बी अ बैड प्रैक्टिस अगर आप जाके किसी ऐसे बंदे से पूछेंगे जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस सब्जेक्ट से। तो उस केस में फिर आप
कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट के पास जाते हैं, उससे कहते हैं सर मुझे प्लीज़ किसी को रेफ़र करें, वो आपको किसी और को रेफ़र करता है। इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं कि एक ने दूसरे को की, पहले कन्वीनियंस की यानी आसानी से जिस तक पहुंच गए, फिर उससे कहा कि सर मुझे आगे बताएं, वो 4 दे दिए, फिर उनके पास गए, उनको कहा आगे बताएं। इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसी तरह मुख्तलिफ सैम्पलिंग के तरीके लिखे हुए जिनमें छोटी छोटी नुआंसेस हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये आप पढ़िएगा, आपके पास नोट्स में मौजूद है। एंड इफ़ यू हैव क्वेश्चन प्लीज़ प्लीज़ गेट बैक टू मी। सो ये था जी ऑल अबाउट सैम्पलिंग। आपको मैं आज दो असाइनमेंट्स भी टर्निटिन पे दूंगा जो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम। आपकी 2 असाइनमेंट्स मिड टर्म से पहले भी थी, जो कुछ लोगों ने जमा कराई, कुछ ने नहीं कराई, काइंडली वो भी जमा कराएं, क्योंकि आपकी फाइनल जो ग्रेडिंग होगी उसमें मिड टर्म, फाइनल और सेशनल तीनों मार्क्स हैं। इसको प्रोजेक्ट, सेशनल, असाइनमेंट्स मुख्तलिफ़ चीज़ों से मेजर किया जाता है। तो इस केस में हम लोग असाइनमेंट्स को, या जिसको मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज़ टू, तो वो क्विज़ या असाइनमेंट जो भी कह लें उसको, वो सारी की सारी आपने जमा करानी है, ताकि जो आपके फाइनल मार्क्स का तीसरा पार्ट है यानी सेशनल पार्ट, उसमें आपके अच्छे नंबर आएँ। थैंक यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, विच इज़ द लास्ट सेशन, एंड इट इज़ अबाउट द कंटेंट्स ऑफ अ थीसिस। यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि आप रिसर्च करते हुए किन मराहिल से गुज़रते हैं। जो पीछे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कलरफुल बॉक्सेस के साथ, वो दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर नेक्स्ट सेशन। उसमें हम समझेंगे स्टेप्स क्या होते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और हम थीसिस कैसे लिखते हैं। थैंक यू जी।